As a guarantee to social justice and personal dignity, untouchability is abolished and its practice in any form is prohibited and a punishable offense. So, for the social justice as well as for the personal dignity, untouchability is abolished and its practice is also prohibited and it's considered as a punishable offense. यानी कि सोशल जस्टिस और पर्सनल डिग्निटी की जो गारंटी देने के लिए जो अनटचेबिलिटी जो है तो उसकी प्रैक्टिस एक प्रोहिबिटेड की गई है और उसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है. Titles and epithets which create artificial discriminations in the society have been removed. So, which epithets or titles were prevalent in our society in past time? So, these titles and epithets were removed from our society. The adjectives used before names like Sir, Diwanji, Rai Bahadur are removed. यानी कि नेम के आगे जो पहले सर, दीवानजी, राय बहादुर ऐसे लिखने की जो एक ट्रेडिशन थी तो उसको अभी उसको रिमूव कर दी गई है. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट स्पेशल कंट्रीब्यूशंस and achievements of individuals in various fields give special awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri. So after independence, Indian government had decided to felicitate for particular persons' contribution and achievements of individuals as like with Bharat Ratna, Padma Vibhushan, पद्म भूषण, पद्मश्री एट्सेट्रा. यानी कि कोई भी पर्सन जो है तो उनका कुछ विशेष कंट्रीब्यूशन है या कुछ विशेष उनकी अचीवमेंट्स है तो उसको फेलिसिटेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ जो अवार्ड्स है वो अवार्ड्स उनको मिलते हैं जैसे कि भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण, पद्मश्री एट्सेट्रा. परमवीर चक्र इज अवॉर्डेड इन मिलिट्री सर्विसेज. यानी कि जो परमवीर चक्र है तो मिलिट्री सर्विस के लिए दिया जाता है. एडजेक्टिव्स लाइक जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल आर एडेड बिफोर नेम्स इन मिलिट्री सर्विसेज which is not considered as a violation of right to equality. So friend, general, major, chief marshal, field marshal, all these adjectives are given for military services and it is not considered as a violation of right to equality. The aim of this right is to form an equitable society and thereby establish rule of law in India. यानी कि ये जो राइट है उसका एम ये है कि सोसाइटी में जो रूल ऑफ लॉ यानी कि सोसाइटी में जो लॉ का जो रूल है वो चले, उसको एस्टेब्लिश करने का जो प्रिंसिपल है तो उसको स्प्रेड करने की कारण इसको एस्टेब्लिश किया गया है. टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स or classes, there can be different types of provisions under law. For example, there are different laws for advocates, doctors, teachers, insurance agencies, women, juveniles. So friend, in our country to provide specific services to different types of groups or classes, there are different provisions are prevalent. For example, for advocates, doctors, teachers, insurance agencies, women, juveniles, etc. So they can form their provisions by individually. The principle of equal pay for equal work is also a part of this article. यानी कि equal pay for equal work ये जो प्रिंसिपल है तो वो भी एक यही आर्टिकल का एक पार्ट माना जाता है. So friend, we have discussed here right to equality. Now friend, we will see here right to freedom. The Constitution of India provides the citizens of India 6 types of freedom which are as under. So friend, our Indian Constitution provides to us 6 types of freedom which are given here. First number is the freedom of speech and expression. Second number,
to assemble peacefully without arms. Third number, to form associations or unions. Fourth number, to move freely throughout the territory of India. Fifth number, to reside and settle in any part of the territory of India. Then sixth number, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. So friend, these six types of freedom which are given by our constitution to Indian citizens. Let us know about this freedom in detail. So first of all we will see here freedom of speech and expression. यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या होता है, तो हर एक इंडियन सिटीजन्स तो है तो उनको एक फ्रीडम मिली है अपनी जो भी बात है, अपने जो थिंक है यानी कि जो अपने विचार है तो उसको एक्सप्रेस करने की। उसके बाद जो सेकंड नंबर है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो उसमें विदाउट आर्म्स यानी कि किसी भी प्रकार का हथियार लिए बिना कोई भी इंडियन सिटीजन जो है तो वो एक साथ कहीं ग्रुप में खड़े रह सकते हैं, यानी कि वो अब अपोज करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, यानी कि उसमें इंडियन सिटीजन्स को ये राइट मिला है कि वो अपना खुद का जो एसोसिएशन से या फिर यूनियन से तो वो यूनियन वो बना सकें। फोर्थ नंबर है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है तो वहाँ पे वो फ्रीली यानी कि बिना किसी भी रुकावट के या बिना किसी की बैरियर्स के वो पूरी कंट्री में कहीं पे भी घूम सकते हैं। फिफ्थ नंबर टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की कोई भी रीजन में किसी भी स्टेट में इंडियन जो सिटीजन है तो वो वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। अगर कोई राजस्थानी पीपल है तो वो गुजरात में आकर रहना चाहता है तो भी वो रह सकते हैं। और लास्ट नंबर जो है सिक्स नंबर टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि इंडियन सिटीजन को इतनी फ्रीडम मिली है कि वो किसी भी प्रकार का जो प्रोफेशन है, किसी भी प्रकार का जो ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है या फिर बिजनेस है तो उसको वो चूज़ कर सकता है और उसके ऊपर वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे एक तरह से जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, ट्रेड, बिजनेस, उसके लिए इंडियन सिटीजन को पूरी जो फ्रीडम है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। नाउ फ्रेंड वी विल सी हियर सेकंड पैराग्राफ। These rights are of utmost importance for the overall development of personality and expressions of Indian citizens, for harmonious working of democracy and a healthy lifestyle. So that means friends, these rights are most important for overall development of personality and expressions of Indian citizens. यानी कि इंडियन सिटीजन्स की जो पर्सनालिटी है, उनकी जो एक्सप्रेशन है, उनको डेवलप करने के लिए ये जो राइट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ जो हमारी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को एक हारमोनियस वर्किंग करने के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये राइट्स हम उनको नहीं देते हैं तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ठीक से नहीं चल पाएगी। और साथ में जो इंडियन सिटीजन है तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल भी एक हेल्थी लाइफस्टाइल हो, तो इसके लिए ये राइट्स की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। एनी इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और इरिस्पॉन्सिबली, यानी कि कोई भी पर्सन जो है तो ये जो फ्रीडम हमें मिली है तो उसको इरिस्पॉन्सिबली यानी कि गैर जवाबदारी पूर्वक वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकती, यानी कि उसको वो यूज़ नहीं कर सकती। जो भी प्रोहिबिशन है या फिर जो भी रूल्स है उसको ध्यान में रख कर ही ये जो फ्रीडम जो है तो फ्रीडम को हमें एंजॉय करनी है। द स्टेट कैन कंट्रोल एंड लिमिट दिस राइट टू फ्रीडम इफ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस and security of the society. So that means friends, state government has a right to control and limit this right to freedom if the persons are against the welfare, peace और security of the society, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके पास से ये फ्रीडम जो है राइट टू फ्रीडम तो उनको कंट्रोल करने की या फिर उनकी जो लिमिट है वो लिमिट में रखने की एक अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है।
वो कब ऐसा हो सकता है कि जब कोई पर्सन है तो वो वेलफेयर के अगेंस्ट में काम करता है, पीस के अगेंस्ट में, यानी कि जो एटमॉस्फेयर जो है तो वो पीसफुल नहीं रहने देता, और सिक्योरिटी के जहाँ पे सवाल खड़े होते हैं तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट गवर्नमेंट ये जो राइट टू फ्रीडम है वहाँ पे कंट्रोल कर सकती है। दिस हैज़ बीन क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज़ बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ द राइट्स आर एक्सरसाइज। यानी कि ये जो बात है तो वो बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियरली मेंशन की गई है, और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो राइट है तो वो राइट को हम कैसे एक्सरसाइज करें, या फिर कैसे हमें एक्सरसाइज उसको यूज़ करना चाहिए, तो वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है। Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. This can be expressed either orally, verbally, and through gestures, but that does not provide for exercising these rights in unlimited and unrestrained manner. So, friend, Indian citizens have been given the freedom of speech and expression by our Constitution, and we can express our thoughts by orally, verbally, or through gestures also. But we have to enjoy these rights with certain limitations and control. We cannot enjoy these rights in unrestrained manner. यानी कि ये जो राइट्स हमें मिले हैं तो वो राइट्स को हम कुछ लिमिटेशंस के साथ उसको एंजॉय कर सकते हैं। Certain necessary control and limitation have been stated in the Constitution. So friend, there is given some provision regarding to control and limit our freedom of speech and expression in our Constitution. The state can put required control through law and order for maintaining the unity and integrity of India, safety of the state, for amicable relation with foreign nations, public management and public peace, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for crime. यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है तो उसके ऊपर कुछ कंट्रोल कर सकती है, और वो लॉ एंड ऑर्डर के जरिए कि जब हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात आती है या फिर उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो वहाँ पे उस वक्त ये स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, साथ में अपने स्टेट की सेफ्टी के लिए भी कंट्रोल कर सकती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई है कि ऐसी सिचुएशंस में जो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो ये राइट्स को, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को वहाँ पे कुछ देर के लिए रोक सकती है या कुछ देर के लिए उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। It is the authority of the judiciary whether these many limitations are appropriate or inappropriate। यानी कि जुडिशरी जो है तो जुडिशरी के पास ये अथॉरिटी है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट लिमिटेशंस या कंट्रोल जो रखती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस के ऊपर, तो ये अप्रोप्राइट है या फिर इनअप्रोप्राइट है, यानी कि वो योग्य है या अयोग्य है, तो वो डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है वो जुडिशरी के पास होती है। The purpose behind the freedom of press, through which ideas and opinions put forth for public welfare, has not been separately mentioned. So friend, there is one another right, freedom of press, which through our ideas and opinions can put for the public welfare, and it is not mentioned separately. इट कैन बी इंक्लूडेड इन द राइट टू एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो वो उसको अलग से मेंशन नहीं किया गया है, उसको राइट टू एक्सप्रेशंस के अंदर ही उनको मेंशन किया गया है। सेकंड पैराग्राफ, द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन between 6 to 14 years. So friend, in 2009, one amendment took place in our constitution, and according to this amendment, those children who are between 6 to 14 years, they have to write free and compulsory primary education.
यानी कि 2009 में जो अमेंडमेंट हुआ था तो उसके मुताबिक हमारी कंट्री के 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं तो उनको एक राइट मिलता है कि फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का। इफ़ अ पर्सन इज नॉट कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम then he cannot be sentenced to punishment or more punishment than the one prescribed by the law, cannot be given the punishment more than once, cannot be given to the same convicted person। यानी कि जो भी पर्सन है वो अगर क्राइम के लिए या फिर कोई भी ऑफेंस उसने किया है तो वो कन्विक्ट यानी कि वो डिक्लेयर नहीं होता है तो उसको किसी भी प्रकार की जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट नहीं दे सकते। यानी कि जो लॉ के मुताबिक जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट भी उनको हम नहीं दे सकते। यानी कि जो इनोसेंट पीपल है और उसने कुछ किया ही नहीं है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती है और उसको एक से ज़्यादा बार जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट भी नहीं मिलती है। और एक ही पर्सन को जो पनिशमेंट मिलती है तो उसको वही पनिशमेंट बार बार नहीं होती है। नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ। यानी कि हर एक जो पर्सन है वो पर्सन की अपनी जो लाइफ है अपनी जो लिबर्टी है तो वो उसको एंजॉय करने दिया जाता है और जो भी नहीं किया जाता तो वो जो हमारे लॉ में जो कंसिडर किया गया है जो दिखाया है तो उसको ध्यान में रखकर उसको लेकर ही वो जो अपनी लिबर्टी है वो लिबर्टी को एंजॉय कर सकता है। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। यानी कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक उनको ये नहीं बताया जाता कि उसने क्या क्राइम किया है, तब तक उसको जो अरेस्ट है वो अरेस्ट नहीं कर सकते। इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज और हर चॉइस। यानी कि जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया है या फिर अरेस्टेड है तो वो कोर्ट में अपनी जो बात है वो बात को वो प्रेजेंट कर सकता है और वो भी अपने जो लॉयर है वो लॉयर के जरिए, क्योंकि ये उनका एक राइट है। एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। यानी कि जो भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर ही नज़दीक के जो भी मैजिस्ट्रेट है तो उनके सामने उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन कस्टडी। यानी कि उनकी परमिशन के बिना किसी भी पर्सन को जो अपनी कस्टडी में वो नहीं ले सकते। एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट द पर्सन अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द अफोरसेड मैटर्स। यानी कि हमारी जो प्रोहिबिशन एक्ट है तो उसके मुताबिक अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करने की ज़रूरत है कि कोई कुछ ऐसी बात है कि जहाँ पे उनको अरेस्ट करना ही होता है तो प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर में वो ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर दिया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इफ द स्टेट एंटिसिपेट्स एनी क्रिमिनल डीड और एक्टिविटी फ्रॉम एनी पर्सन देन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर that person can be detained by the state under a preventive detention act. So that means friends, if state has any doubt regarding criminal deed or activity from any person, so according to this preventive detention act, state government can order to arrest this person or detain to this person. The purpose of this act is not to punish a convict but to stop him from doing any criminal activity against the state, society or any individual. So friend, the purpose of this act is not to punish a person but to stop him from doing any criminal activity against state, सोसाइटी और इंडिविजुअल। यानी कि ये जो एक्ट है तो उसका पर्पज़ ये नहीं है कि ये उस पर्सन को पनिशमेंट दे। उसका पर्पज़ ये ऐसा होता है कि वो अगर कोई स्टेट, सोसाइटी और इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसको वहाँ पे रोक दिया जाए। अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन नॉट मोर देन 3 months। यानी कि ये जो एक्ट है तो एक्ट के अंडर में
किसी भी पर्सन को डिटेन करते हैं तो वो 3 महीने से ज़्यादा यानी कि 3 मंथ से ज़्यादा उनको डिटेन नहीं किया जा सकता। द डिटेंशन or order can be cancelled based on the opinion of the judges of the Supreme Court or members of the advisory board. So friend, the order of the detention can be cancelled by the judges of the Supreme Court or members of the advisory board. यानी कि जो भी पर्सन को डिटेंशन में रखा गया है तो उनको ये ऑर्डर को कैंसिल करने की जो अथॉरिटी है तो वो अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस है तो उनके पास होती है और साथ में मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी बोर्ड जो होता है तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है। द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन, यानी कि जो डिटेंशन जो है तो वो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करते हैं कि कितने समय के लिए उनको डिटेंशन में रखा जा सकता है। Now friend, we will see here third number, right against exploitation. The main objective of the constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hands of the other person and exploitation free society is established. So friend, our constitution's main objective is to protect any person from exploitation by other person as well as to establish exploitation-free society in our country. That is the objective of the constitution through this right. So friend, this is the objective of our constitution which we can obtain by this right. Human trafficking, drudgery, slavery and forced labor are banned. So these things are banned in our country. The violation of this right is a punishable offense. So if any person violates this right, so it considered as a punishable offense. Illegal trade of children and women, forced labor or imposed slavery, work without pay, and the old drudgery system has to be ended through this right. So friend, by using this right, we can protect to children and women for by their illegal trading. We can also protect to labor and slavery and work without pay and old drudgery system. And in short, we can also say that these things are ended by the using of this right. To take work from any person without paying them or paying them less than minimum wages, forced or imposed labor is a punishable act. यानी कि किसी भी पर्सन को उनको जो पैसे मिलते हैं वो पैसे दिए बिना हम किसी से काम नहीं करवा सकते और साथ में उनका जैसा काम है उनके मुताबिक उसको अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो भी ये एक क्राइम कहा जा सकता है या ये उसको कंसिडर किया जा सकता है और उसको भी एक पनिशेबल एक्ट के अंडर में लाया जा सकता है। एनी चिल्ड्रन under the age of 14 cannot be made to work in a factory, mine or any dangerous profession, garage, hotel or cannot be employed as a household servant. यानी कि जो भी चाइल्ड की एज 14 ईयर्स से कम है या उसके नीचे है तो उसको कोई भी फैक्ट्री यानी कि जो फैक्ट्रीज है, माइन है और कोई ऐसे डेंजरस प्रोफेशन है तो वहाँ पे उसको हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि उसको एक उनकी जो सर्विस है वो हम नहीं ले सकते हैं। जैसे कि गैरेज है, होटल है और किसी भी हाउस होल्ड सर्वेंट है तो वो अगर कोई भी बच्चे की एज 14 ईयर्स से कम है तो उसको वहाँ पे ऐसा काम जो है वो नहीं करने दिया जा सकता और कोई भी ऐसा करता है तो उसके जो ऑनर है तो वो ऑनर को एक ऑफेंडर की तरह देखते हैं। Under the Prohibition of Child Labour Act, all these are punishable offences. यानी कि जो चाइल्ड लेबर एक्ट है तो उसके अंडर में ये सब जो वर्क है तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी सर्व्ड फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट मिलिट्री सर्विसेज इन एनी फील्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट और क्लास विद और विदाउट रिम्यूनरेशन। कुछ ऐसी सर्विसेज के जो बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए जो भी पर्सन है वो पर्सन
की जो सर्विस है वो ले सकते हैं, और वो भी कि जो जब पब्लिक वेलफेयर की बात आती हो तब ऐसी जो सर्विसेज है तो वो सर्विसेज ले सकते हैं जे, और वो भी किसी भी प्रकार की जो रिलीजन है, जेंडर है, कास्ट है और क्लास है तो उसके ध्यान में रखे बिना ये जो सर्विसेज है तो वो उसको हम ले सकते हैं।